Hello everyone, good evening. I am Shresha Shrivastava, your English educator on your own channel, just 9th and 10th, your one-stop solution to all your questions, all the problems and all the queries that you have regarding your syllabi of class 9th and class 10th. So how are you all today? How are my lovely learners today? First of all, I wish you all the happiness and all the success in this festive season. I really hope you are staying home, safe, and enjoying your festivities, your festivals with your family member. Now, in this particular session today, we are going to have a detailed and a very important discussion on the topic of tenses. आज का जो हमारा सेशन होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है. द टॉपिक इज दैट ऑफ टेंसेस. और बच्चा पार्टी, ये जो टॉपिक है इसको केवल और केवल आप ग्रामर का टॉपिक मत समझिए, because tenses are very vital in everything that you do. Every content of English that you write, whatever you speak, it's most important that you know the rules and regulations while using tenses. और ये जो टेंसेस का टॉपिक है, मे बी डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कम योर एग्जामिनेशन. ये आपका ग्रामर सेक्शन का तो पोर्शन है ही है. लेकिन अगर आप मतलब ऐसे सोचेंगे तो चाहे आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो या आप लेटर राइटिंग कर रहे हो और यू आर राइटिंग द आंसर्स ऑफ योर लिटरेचर सेक्शन, you should be consciously aware whether you are using the tenses in a proper manner or not. अदरवाइज, क्योंकि बेटा जो हमारा इंग्लिश का पेपर है वो किसका पेपर है? लैंग्वेज का पेपर है. एंड यू विल बेटा get deductions of marks if you make use of the incorrect language. और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत ही आती है टेंसेस को यूज करने में. वो ये भूल जाते हैं, पढ़ तो हम लेते हैं टेंसेस को, लेकिन क्योंकि हम इसको कॉन्शियसली देखते नहीं हैं, अप्लाई नहीं करते जो रूल्स हम पढ़ते हैं, हम कहीं ना कहीं एरर कर जाते हैं. So it is my very sincere request for all my learners, all those of you watching this particular video, कि जब भी आप कोई भी आंसर फ्रेम करें या इनफैक्ट जो स्पोकन इंग्लिश में भी बात करते टाइम भी कॉन्शियसली सोचें और फिर यूज करें अपने टेंसेस को. टेंसेस ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, जहां पे आपका का सारा लैंग्वेज का जो कंटेंट है वो बेस्ड है. Right? So in this particular class and in the subsequent next two classes as well, we are going to discuss the topic of tenses. आज हम introduction भी करने वाले हैं tenses का. One type of tense, a major type of tense, that is past tense, वो और उसके सब टाइप्स भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं in this particular session. So let us begin with our class today. Now, but before we do that, I'm going to introduce myself, especially to all my new learners who are watching this particular video for the very first time. My name is Shrestha Shrivastava, and I have done my master's in clinical psychology. And for the past more than 7 years, I have been teaching and educating kids or students and learners from class 9 to class 12 of CBSE board. And in this duration of more than 7 years, I have tutored more than 5,000 students from different classes. And today I am here on your own channel on this amazing platform of just 9th and 10th. I have brought for you this particular session where we are going to start with a very vital, very important topic of grammar, that is tenses. और उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को दूंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. और मेरी पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है दैट आप लोगों को क्या करना है, अपने स्मार्टफोन्स में तुरंत टेलीग्राम ऐप को कर लेना है इंस्टॉल. बच्चा पार्टी, स्मार्टफोन्स के प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम ऐसे टाइप कीजिए, जैसे ही आपको ये आइकन दिखे इसको क्लिक करो और इस ऐप को इंस्टॉल कर लो. बिकॉज अगर आप मेरे कोई भी स्पेशल क्लासेस या फिर यूट्यूब सेशंस को लाइव अटेंड करना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए रहेंगे क्या? डेली अपडेट्स. और ये सारे डेली अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं इस टेलीग्राम ऐप के इस ऑफिशियल चैनल पे, जो है हमारा ऑफिशियल चैनल t.me/justclass910, जहां पे मैं डेली नोटिफिकेशंस पोस्ट करती रहती हूँ रिगार्डिंग माय अपकमिंग यूट्यूब सेशंस. सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ माय अमेजिंग यूट्यूब सेशंस, अगर आप हमारे चैनल के कोई भी लाइव सेशंस मिस नहीं करना चाहते हो, तो क्या करना है, इस यूआरएल को, जिसका एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपके लिए गिवन है, वो डायरेक्ट लिंक है बेटा, t.me/justclass910.
प्लीज इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वीडियो के, एंड बच्चा वहां से इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डेली नोटिफिकेशंस और डेली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे, और आपका कोई भी सेशन, चाहे वो हमारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस हो या फिर यूट्यूब सेशन हो, बेटा मिस आउट नहीं होने चाहिए, राइट। और उसके अलावा हमें क्या करना है, उसके अलावा बच्चा पार्टी हमें डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को, क्योंकि ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे इंडिया भर के टॉप एजुकेटर्स, बच्चा एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो हैं, वो आपके लिए आए हैं एक साथ, और उन्होंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्सेज डिजाइन किए, एंड उनमें से ही है बेटा हमारे अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज। एंड अन अकेडमी के जो प्लस कोर्सेज है बेटा, दे आर प्रोवाइडेड विद टू यू एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि अन अकेडमी का बेटा हमेशा से एक विजन रहा है टू प्रोवाइड टॉप क्वालिटी एजुकेशन एट वेरी नॉमिनल चार्जेस, ताकि इंडिया के हर एक लर्नर को बेटा क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। यही अन अकेडमी का एम रहा है, और इसीलिए हम आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, और ये यूट्यूब के सेशंस भी कंडक्ट कराते हैं। बट ओवर एंड अबव दैट, इफ यू वांट एन एज अबव ऑल द अदर लर्नर्स, आई रेकमेंड यू गाइज टू काइंडली सब्सक्राइब टू द प्लस कोर्सेज ऑफ अन अकेडमी, जहां पे आपको मिलते हैं लाइव इंटरेक्टिव सेशंस। बेटा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, और वो भी लाइव पढ़ाते हैं, क्योंकि इन क्लासेस में लिमिटेड एनरोलमेंट्स होते हैं, सो द एजुकेटर कैन फोकस अपॉन ईच एंड एवरी लर्नर, एंड द लर्नर कैन हैव अ गुड डिस्कशन ओवर देयर डिफरेंट टॉपिक्स, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, सारे के सारे बेटा सेशंस को आप लाइव इंटरेक्टिव क्लास में अटेंड कर सकते हो विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द नेशन। प्लस आपको क्या मिलता है बेटा, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स। ना केवल बेटा इन सेशंस में लर्निंग चलती है, लेकिन इवैल्यूएशन और असेसमेंट भी साथ साथ होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पे चलते हैं पोल्स, क्विज होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आप आंसर्स करते हो, एंड यू गेट अ लीडर बोर्ड, एंड देन यू सी योर रैंकिंग ऑन दैट लीडर बोर्ड, सो यू फील द ड्राइव, यू फील द अर्ज टू डू बेटर, टू नो मोर, ताकि आप टॉप करो बेटा ओवर एंड हाई, ओवर एंड अबव ओवर द रेस्ट। ओके, ये आपको एक ड्राइविंग फोर्स देता है, एक मोटिवेशन देता है टू लर्न मोर, टू वर्क हार्ड मोर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत जरूरी है बेटा अचीवमेंट्स के लिए, सक्सेस के लिए। प्लस कोर्स में और आपको मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। यस, ये लाइव होते हैं बेटा, रिकॉर्डेड नहीं होते कि आपने डाउट बता दो और आपको रिकॉर्ड सेशन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इन प्लस कोर्सेज में आपको लाइव अपने एजुकेटर से अपने डाउट सॉल्व कराने के अलग से सेपरेट 1 घंटे के सेशंस दिए जाते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द सिलेबस, आप सही वहीं पे बेटा अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सको फ्रॉम द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, राइट। नेक्स्ट आपको दिया जाता है वीकली टेस्ट एंड नोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, अगर आप वाकई हर महीने में अपनी लर्निंग को इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, अपनी सक्सेस को गारंटी करना चाहते हो, तो वीकली टेस्ट जरूर अटेंड करने चाहिए, ताकि वीकली बेस पे जो भी हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर ले, इन टेस्ट को अटेम्प्ट करें और देखें हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, एंड देन वी कैन क्लेरिफाई ऑल आवर डाउट्स इन आवर डाउट सॉल्विंग सेशंस। और बिना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स देते हैं आपको अपने इंपॉर्टेंट नोट्स, वो एकदम क्रिस्प होते हैं, इन लाइन विद एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, एंड देयर वे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू टू सेल ऑफ स्मूथली ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। प्लस यहाँ पे मिलता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब क्या होता है बच्चा, कि यहाँ पर आपकी क्लास में हमारे जितने भी टॉप एजुकेटर्स ने जो भी प्लस कोर्सेज डिजाइन किए, जो भी बैचेस चल रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव क्लास के आप सारे सब्जेक्ट्स बेटा, सारे टॉप एजुकेटर्स के प्लस कोर्सेज को लाइव अटेंड कर सकते हैं, या उनके रिकॉर्ड सेशंस को बार बार देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। Isn't it so good? So guys, please do not think twice and enroll to the plus courses of Unacademy right away. Alright? And ये है बेटा एक Unacademy का सब्सक्रिप्शन प्लान, जहां पे 9 से लेकर के 12 तक के आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो जस्ट इन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। और इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड भी करूंगी, स्पेशली टू माय 9th क्लास 10th क्लास लर्नर्स, क्योंकि बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर आप 9th में हो तो 10th 11th 12th का सारा कंटेंट डन है, अगर आप 10th में तो 11th 12th का सारा कंटेंट डन है इसी एक सब्सक्रिप्शन प्लान। Now see this, all my 10th class learners, what they can do is बेटा, अगर आप इसमें एनरोल कराना चाहते हो तो एज एन एजुकेटर आई वुड रेकमेंड कि आप 24 मंथ यानी कि 2 साल का कोर्स एनरोल कराइए, ताकि आप 11th 12th भी इसमें पढ़ पाए। और जो मेरी 9th क्लास के लर्नर्स है, आई वुड रेकमेंड फॉर यू गाइज टू गो फॉर अ 36 मंथ प्लान, जो 3 साल का प्लान है, ताकि 10th 11th एंड 12th दोनों बोर्ड्स इसी में कवर हो जाएंगे बेटा, सारे सब्जेक्ट्स बाय द टॉप एजुकेटर्स, राइट। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, लेकिन अपनी लर्निंग को बेटा, क्वालिटी लर्निंग को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए बाय द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स। Now, if your parents
पेरेंट्स वांट दे कैन आल्सो पे ऑन मंथली बेसिस। बेटा अगर आप जितने लंबे ड्यूरेशन का कोर्स आप एनरोल कराते हो, आपको पता है उसको उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब उसका कॉस्ट उतना ही कम हो जाता है, उतना ही बड़ा आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है, राइट? सो यू कैन पे ऑन मंथली बेसिस एज वेल। फॉर 24 month your parents only have to pay 938 per month, and for 36 month बेटा they only have to pay 900 per month. सोच के देखो, कैलकुलेट करके देखो, इट्स हार्डली 30 रुपीज पर डे, दैट्स इट। ओके, इतना सा नॉमिनल कॉस्ट बेटा, दैट्स इट, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान, राइट? एंड ऑफ कोर्स बेटा अगर आप मेरा जो रेफरल कोड है, आई वुड रेकमेंड टू यू कि इसको यूज कीजिए प्लीज, ताकि आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। SHRESHTH, ये मेरा नाम भी है और ये मेरा रेफरल कोड भी है। हर एक सब्सक्रिप्शन के लेते टाइम बेटा, चाहे आप हो, आपके ब्रदर हो, कजन हो, सिस्टर हो, या कोई क्लासमेट हो या स्कूलमेट हो, जब वो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है, उसमें वो सब जगह मेरा रेफरल कोड जो कि श्रेष्ठा है, SHRESHTH, कैपिटल लेटर में टाइप कर दीजिए बेटा। हार्डली 2 सेकंड में आप टाइप करने में आपको लगेंगे, उसको अप्लाई करो। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? 10% का गुड डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड दीज आर द टोटल कॉस्ट दैट यू विल गेट आफ्टर डिस्काउंट। दैट इज, अगर आप 24 मंथ के लिए एनरोल कराते हैं, यू गेट द टोटल पैकेज विल बी दैट ऑफ 22,500 ओनली। एंड अगर आप 12 मंथ्स के लिए एनरोल कराते हैं बेटा, दैट्स गोइंग टू बी 13,500, जस्ट 13,500। इमेजिन कीजिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां पे ये जो कॉस्ट है बेटा, ये एक सब्जेक्ट की होती है। बट अनअकैडमी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स बेटा पढ़ा रहा है, चारों क्लासेस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है एट जस्ट 22,500 फॉर 2 years एंड 13,500 एट ओनली फॉर 1 year। और 3 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान और भी सस्ता हो जाएगा, राइट? नाउ दीज आर द डिफरेंट चैनल्स और मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल, जो भी आपको फीजिबल या कन्वीनियंट लगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI या फिर नेट बैंकिंग, आप सबके थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। सो डू नॉट थिंक ट्वाइस गाइस एंड सब्सक्राइब टू द प्लस कोर्सेज। और अगर आप एक लेवल अप जाना चाहते हो, तो आई वुड रेकमेंड फॉर यू गाइस टू गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, जहां पे आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ना केवल आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसके ऊपर से आपको मिलेगा बेटा पर्सनल मेंटोर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके मेंटोर बनेंगे, आपके गाइड बनेंगे बेटा, और जो भी आपके कंसर्न्स हैं, क्वेरीज है, वो सब रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी योर 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। एंड वी विल इंश्योर गारंटीड सक्सेस इन योर फाइनल एग्जामिनेशन इन योर एकेडमिक्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट्स दी जाती है बेटा अबाउट योर परफॉर्मेंसेज इन योर टेस्ट, इन क्विज एंड योर क्लासेस दैट यू हैव अटेंडेड। आपके साथ मिलकर बेटा एक स्टडी प्लानर क्रिएट किया जाता है, ताकि जो स्टडी है बेटा वो प्लान वे में चलती रहे और आपकी सक्सेस जो है वो 100% गारंटी हो जाए। एंड वी विल मेक श्योर बेटा दैट यू शुड नॉट गो ऑफ ट्रैक। ये तो हमारा काम है और ये हम जरूर करेंगे, राइट? एंड मुझे यहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, मतलब जो आपके पेरेंट्स है वो बनेंगे आपके जो आपके जो पर्सनल मेंटर्स है बेटा, वो आपके पेरेंट्स के साथ आप कन्वर्सेशन करेंगे, और पेरेंट्स जो है अपनी कंसर्न्स जो है बेटा वो शेयर कर सकते हैं आपके मेंटोर के साथ। ये सब मिलने वाला है तुमको केवल और केवल एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में। और इस सब्सक्रिप्शन प्लान का जो डिटेल है बेटा वो रहा ये, CBSE क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बच्चे इसमें एनरोल करा सकते हैं। इसमें प्लस के सारे बेनिफिट्स बेटा इंक्लूडेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स और भी डिफरेंट बेटा मंथ्स के ड्यूरेशन का ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। बट मैं रेकमेंड ये वाले प्लान इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड बेटा आपके पेरेंट्स चाहें तो इनको आप मंथली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं। एंड while subscribing to the iconic subscription, please do not forget to use my code that is Shrestha to get a 10% discount। अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए ना, तो फटाफट से मेरा कोड अप्लाई कर लो। और आप ही नहीं बेटा, आपके फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, स्कूलमेट्स को सब बताओ टू गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एंड यूजिंग माय कोड दे कैन गेट अ 10% discount। That is 10% discount on all the plus courses or the iconic subscription। So please do not forget to use my code that is Shrestha। and बच्चा पार्टी, ये रहा तुम्हारा डिफरेंट चैनल्स और मेथड ऑफ पेमेंट अवेलेबल। जो मेथड आपको इजी लगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI या वॉलेट्स, आप सबके थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। किसी भी एक चैनल के थ्रू पेमेंट्स आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपके पेरेंट्स को चाहिए बेटा, तो उनको बताइएगा कि वो मंथली बेस पे पे कर सकते हैं। फॉर 24 मंथ दे ओनली हैव टू पे 2,000 रुपीज पर मंथ, एंड फॉर 36 मंथ कोर्स बेटा सब्सक्रिप्शन प्लान दे ओनली हैव टू पे 1,833 रुपीज पर मंथ। दैट्स इट। इतना सस्ता है बेटा, और इतना बढ़िया प्लान है जहां पे आपको अपनी बेटा गारंटी, अपनी सक्सेस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके मेंटोर बन रहे हैं बेटा, तो सक्सेस तो गारंटी है ही है। All right, so either you can opt for a plus subscription or you can opt for an iconic subscription, but I would suggest do not lag behind. Grab this golden opportunity with both hands beta, and subscribe to these courses immediately now. Abhi kar lo. All right, moving on.
नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माय वीडियो, जो मेरे हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है बेटा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल है। इन लिंक्स को यूज करो बेटा, ये आप लोगों के लिए है। अगर आप सब्सक्रिप्शन का पेज आपको नहीं मिल रहा है अनअकैडमी का, तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट पेज का लिंक अवेलेबल है, उसमें मेरा कोड जरूर अप्लाई करना, श्रेष्ठा टू गेट अ 10% ऑफ। ये है बेटा एक छोटा सा लिंक फॉर दी फीडबैक फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हार्डली 2 मिनट का एक फीडबैक फॉर्म है बेटा, इसको फिल कीजिए एंड दी एजुकेटर्स विल गेट बैक टू यू with resolving all your questions and queries। और बच्चा पार्टी, ये है मेरी अनअकैडमी की एजुकेटर प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक, प्लीज इसको क्लिक कीजिएगा एंड काइंडली फॉलो मी ऑन माय प्रोफाइल सो दैट यू कैन अटेंड ऑल माय स्पेशल क्लासेस, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, एब्सोल्युटली फ्री। ओके, और ये अनअकैडमी अर्निंग ऐप को डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जस्ट क्लास 9th एंड 10th का, उसका ये डायरेक्ट लिंक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो प्लीज इन लिंक्स को यूज कीजिए बेटा, ये आपके कन्वीनियंस के लिए ही बनाए गए हैं। ऑलराइट, एंड लेट अस बिगिन विद द टॉपिक नाउ। टेंसेस पे बात करने से पहले जरूरी ये है बेटा कि अपन एक क्विक रिवीजन ले ऑन द टॉपिक ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है? आई नो दैट यू पीपल ऑलरेडी नो दिस बिकॉज हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी किया है, जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे, याद है? बहुत डिटेल में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, हर चीज डिस्कस की थी। और अपन ने वहां पे बात की थी बेटा, वर्ब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। इट इज बेसिकली द एक्शन वर्ड, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है, या उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, और किस स्टेट में है, वो क्या है, वो सब डिस्क्राइब करता है बेटा वर्ब। तो यहाँ पढ़िए, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है बेटा? वर्ब। इट सेज, वर्ब हमें क्या बताता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डस। कोई जो सब्जेक्ट है बेटा वो क्या कर रहा है, वो हमें वर्ब बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज स्लीपिंग साउंडली। तो जो बच्चा है वो क्या है बेटा? साउंड, यानी कि गहरी नींद में सो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक पर्सन है, वो एक बॉय है, और वो क्या कर रहा है बेटा? वो सो रहा है। तो स्लीपिंग क्या है? बेसिकली यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट वर्ब में क्या बताता है? व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज। कि जो सब्जेक्ट है, जो चीज है या फिर जो इंसान है, वो क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द पपी इज हेल्दी। जो पपी है वो कैसा है बेटा? वो हेल्दी है। ये हमें कौन बताता है? वर्ब बताता है। देन तीसरी चीज वर्ब क्या बताता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज। कि जो पर्सन है और जो चीज है उसके पास क्या है, पोजेशन जो होता है, वो भी हमें कौन बताता है? वर्ब ही बताता है। फॉर एग्जाम्पल, रामन हैज 2 cars। तो ये सब चीजें बताने वाला कौन सा वर्ड है बेटा? वर्ब है। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस। और जो टेंस होता है बेटा वो किस चीज का होता है? वर्ब का ही तो होता है। तो बेसिकली टेंस का क्या काम होता है बेटा? देखो, वर्ब जो है वो तो हमें एक्शन बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है, बिकॉज ये एक्शन वर्ड। ओके, लेकिन वो एक्शन पास्ट में हुआ था, या वो अभी हो रहा है, या फिर वो होके खत्म हो गया, या फिर वो फ्यूचर में होने वाला है, ये सब हमें कौन बताता है? ये सब के लिए हमें चाहिए होते हैं टेंसेस। सो टेंसेस ऑफ अ वर्ब क्या करते हैं बेटा? ये काम होता है टेंसेस ऑफ द वर्ब का। लेकिन उससे पहले सीख लो कि हर सेंटेंस का बेटा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट कौन होता है बेटा? डूअर इन द सेंटेंस, जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के ऊपर एक्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, रिया इज रीडिंग अ बुक। तो रिया क्या है? रिया इज अ सब्जेक्ट। वो एक एक्शन कर रही है। एक्शन क्या है? रीडिंग, शी इज रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? बुक, क्योंकि बुक के ऊपर एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन क्या है? रीडिंग वाला एक्शन है जो बुक के ऊपर हो रहा है। So subject plus verb plus object, this is the basic of all the structures, sentence structure। ये सबसे basic sentence structure है। और बेटा इसको हमेशा ध्यान रखिएगा while attempting all your content, all your answer in a board examination। लेकिन अब बात करते हैं टेंसेस की। टेंसेस मैंने जैसे आपको बताई थी, टेंसेस ऑफ अ वर्ब इंडिकेट द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। ना केवल बेटा देखो, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि जो टेंसेस है वो केवल टाइम बताते हैं। नहीं, वो जो भी एक्शन हो रहा है या हो चुका है, उसका केवल टाइम नहीं बताते बेटा कि वो पास्ट में हुआ था, या वो अभी हो रहा है, या होने वाला है। वो ये भी बताते हैं कि उस एक्शन का स्टेट कैसा है। मतलब क्या वो एक ऑनगोइंग एक्शन है, जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, दिस इज एन ऑनगोइंग एक्शन, या फिर वो एक्शन पास्ट में होके खत्म हो गया, ओके, इट्स फिनिश्ड, क्या वो कंप्लीटेड है, वो भी इसका स्टेट है। तो जो टेंसेस होते हैं वो ना केवल बेटा हमें टाइम बताते हैं किसी भी एक्शन का, लेकिन उसका स्टेट भी बताते हैं कि वेदर इट इज ऑनगोइंग, or is it about to start, or it was going on in the past and then it ended in the past itself।
ये होती है उस पर्टिकुलर एक्शन की स्टेट। अब बात करेंगे बेटा थ्री चीफ टाइप्स और मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस जो आप सब लोग जानते हो। थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन से हैं बेटा? फर्स्ट वन इज योर पास्ट टेंस, जो पुराना था, भूतकाल, जो निकल गया, वो है पास्ट टेंस। ओके। सेकेंड है बच्चा अपना प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, वो चल रहा है प्रेजेंट टेंस। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्या है बेटा? फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में आने वाला है, दैट इज योर फ्यूचर टेंस। लेट्स टेक सम एग्जांपल। पास्ट टेंस का एग्जांपल क्या है? आई रोट एन एसे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? रोट। इसका मतलब क्या है? मैंने पास्ट में एक ऐसे लिखा था। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? आई राइट एन ऐसे। देखिए, तो यहाँ पर भी हो सकता है ऑन, अभी मैं आपसे बात करते करते एक ऐसे लिख रही हूँ, या फिर मैं अभी वो ऐसे नहीं लिख रही हूँ लेकिन मैंने वो ऐसे छोड़ रखा है और वो साथ के साथ चलेगा। ओके, तो दिस कैन बी एन एक्शन गोइंग ऑन बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और एक्शन दैट इज गोइंग ऑन बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो हो सकता है प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है बेटा अपना फ्यूचर टेंस। आई शैल राइट एन ऐसे। आपको पता है आई के साथ शैल यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल यूज होता है, सेकंड और थर्ड के साथ विल यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आई शैल राइट एन ऐसे इन द फ्यूचर। मैं फ्यूचर में एक ऐसे लिखूंगी। तो ये क्या है बेटा? दीज आर द चीफ एंड द थ्री मेजर और बेसिक टाइप्स ऑफ टेंसेस। लेकिन केवल यही टेंसेस नहीं है, यू ऑल नो दिस, इनके भी कुछ सब टाइप्स है। लेट्स मूव ऑन टू दो सब टाइप्स। ना अब जो सब टाइप्स है बेटा, उनका क्या पर्पस होता है और वो क्या कन्वे करते हैं, अपन वो डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वे एट वॉट स्टेज द एक्शन इज, ये बताने के लिए बेटा कि किस स्टेट में एक्शन है या किस स्टेज पे एक्शन है, किस जगह पे एक्शन है, वो उसको डिस्क्राइब करता है बेटा। इज ईच चीफ टाइप इज डिवाइडेड इनटू फोर सब टाइप्स। हर एक जो हमारा मेन टाइप है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, ये हमारे तीन चीफ टाइप है। इन चीफ टाइप में बेटा अगर आपको जानना है कि जो एक्शन है वो किस स्टेज पर है, तो उसके लिए हमने उनको चार सब टाइप्स में, कॉमन सब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। और वो टाइप्स क्या है बेटा? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, नाउ लेट्स सी इन जनरल टर्म्स व्हाट सिंपल नो टेंसेस स्टैंड्स फॉर, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, सिंपल प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल जो टेंस क्या करता है, वो दिखाता है कि जो वर्ब है शोज एक्शन इज ओनली मेंशन। यहाँ पे बेटा वर्ब जो है वो ये बताता है कि ये एक्शन है। ओके, एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन चल रहा है या एक्शन होने वाला है, ऐसा वो कुछ नहीं बताता। वो कहता है वो केवल एक्शन को मेंशन करता है। मींस फॉर एग्जांपल, आई वर्क, आई वर्कड, आई विल वर्क, दैट्स इट। ओके, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? वर्ब शोज एक्शन हैज बिगन बट नॉट कंप्लीटेड। कंटिन्यूएशन में है, वो अभी चल ही रहा है, शुरू हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बताने के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस का। I am working, I was working, I will be working. परफेक्ट क्या होता है? जो चीज परफेक्ट हो जाए, जो खत्म हो जाए, वही परफेक्ट है। पढ़िए, वर्ब शोज दैट द एक्शन हैज फिनिश्ड, एक्शन फिनिश हो गया या कंप्लीट हो गया है, वो हमें बताता है परफेक्ट टेंस। आई हैव वर्कड, आई हैड वर्कड, आई शैल हैव वर्कड। तो जो एक्शन फिनिश हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फुल स्टॉप जिसमें लग जाता है, वो होता है बेटा, वो शो करता है परफेक्ट टेंस। और लास्ट क्या है बच्चा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या होता है? वर्ब शोज दैट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। यहाँ पे वर्ब ये दिखाता है कि एक्शन पास्ट में शुरू हो गया था और अभी तक भी चल रहा है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? आई हैव बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग। इनको हम और डिटेल में एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। हम पास्ट टेंस आज डिस्कस करने वाले विद ऑल द फोर चीफ टाइप्स। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल वाला जो सेशन होगा वहां पे हम डिस्कस करने वाले प्रेजेंट टेंस एंड द मेन चीफ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। एंड लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। इस सीक्वेंस में ये तीनों सेशंस चलेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज आर रेडी नाउ, बिकॉज अब हम बात करेंगे, जो हमने बात करी थी, तीन मेन टाइप्स है बेटा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट टेंस में पहले कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, present continuous, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense. Okay, and last one is present perfect continuous tense. Same goes with future, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and the last one is future perfect continuous tense.
ये सेम से है बच्चा, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें। एक पास्ट के लिए है, एक प्रेजेंट के लिए, और एक आने वाले फ्यूचर के लिए। नाम सही है लेकिन काम बिल्कुल अलग है। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन एंड इन डिटेल व्हाट आर दीज सब टाइप्स ऑल अबाउट। इनके यूजेस क्या है, इनको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, इनके सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। आई रियली होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स कीप ऑन आस्किंग देम इन द चैट बॉक्स, ओके। बट आई रियली होप ये चीज बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है, सो यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने जितना भी सिंप्लीफाइड कर सकती थी उतनी सिंप्लीफाइड मोड में इसको डिजाइन किया है। नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हम पास्ट टेंस से बात करने वाले भूतकाल, वो एक्शन जो पास्ट में हो रहे हैं या पास्ट में हुए होंगे या पास्ट में हो गए, हम उस पर बात करने वाले हैं। राइट, तो पहली बात होगी बेटा सिंपल पास्ट टेंस में, और शुरुआत हम करेंगे विद दी सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सीखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। एफर्मेटिव का मतलब मैंने पहले भी सिखाया था, मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल आई रोट। रोट क्या है बेटा, राइट का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट इज रोट। थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है बेटा, रिटन। राइट, रोट एंड रिटन। लेकिन क्योंकि बेटा पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम रिटन नहीं लिखेंगे, हम रोट लिखेंगे, सेकंड फॉर्म आएगा। राइट, सो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई रोट, शी स्पोक, ओके, दे एट, these all are basically बेटा your affirmative sentence structure for simple past tense। अब इसी में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ ध्यान दीजिएगा बेटा, डिड आएगा और या फिर डिड नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, और आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये याद रखो, सबसे ज्यादा गड़बड़ अपन यही करते हैं, डिड नॉट के साथ या डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आई डिड नॉट न्यू, नहीं, आई डिड नॉट नो, ओके, ये ध्यान रखिए। आई डिड नॉट न्यू नहीं होता, आई डिड नॉट नो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। आई डिड नॉट राइट, दे डिड नॉट राइट, यू डिड नॉट राइट, वी डिड नॉट राइट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब जगह अगर आप डिड नॉट का इस्तेमाल कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। एंड ऑफ डिस्कशन, ये सोचना ही नहीं है, अगली बार ये गलती बिल्कुल मत करना। आई डिड नॉट सेड एनीथिंग, नो, आई डिड नॉट से एनीथिंग। ओके, सो हमेशा याद रखिए डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होगा, पहले आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले डिड आएगा और फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि मैंने क्या कहा था, चाहे तुम डिड लगाओ या डिड नॉट लगाओ, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगता है। राइट, तो यहाँ पे डिड से क्वेश्चन शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ रीड दिस, डिड यू राइट, डिड दे राइट, डिड आई राइट, डिड आई नॉट राइट। Okay, this is how you frame an interrogative sentence structure. Just give me a moment. You already know interrogative sentences are basically where you ask questions. देखिए, और सिंपल पास्ट टेंस बेटा जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो डिड के साथ शुरू होते हैं, और उसमें हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। गांठ बांध लो अच्छी तरीके से, अगली बार भूलना नहीं है। तो डिड नॉट लिखोगे तब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखोगे, डिड लिखोगे तब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लिखोगे। राइट, तो ये है बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, सिंपल पास्ट टेंस है ना, बहुत सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट यूजेस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर वी आर सपोज्ड टू यूज व्हाट, सिंपल पास्ट टेंस, वेयर टू यूज देम। पहला है एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ। एक ऐसा एक्शन बेटा जो किसी टाइम पे पास्ट में हुआ था और अब खत्म हो गया है, तब हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। शी वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। तो ये एक्शन पास्ट में हुआ, कब हुआ, लास्ट मंथ हुआ, ओके, और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो शी वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, ओके, तो ये लास्ट मंथ का एक्शन था और लास्ट मंथ में ही खत्म हुआ। आई बॉट सम चीज येस्टरडे। तो मैंने पास्ट में ये काम किया, मैंने कल ये काम किया और कल ये काम खत्म भी हो गया। आई बॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बॉट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेंट, ओके, सो
आई बॉट, आई वेंट, ये क्या है बच्चा पार्टी, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ओके, सो दिस इज हाउ वी सपोज टू. गो, वेंट, गॉन होता है जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मैंने कहा था आपसे, अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट में क्या यूज होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म. सो शी जो है हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, और ये जो वेंट है वो क्या है बच्चा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ऐसे मैंने क्या लिखा, आई बॉट. बाइड बहुत बच्चे लिखते हैं BUYED, बहुत बच्चे गलती करते हैं. बाइड इज नो वर्ड, इट्स वेरी इनकरेक्ट इंग्लिश. ओके, सो यू ऑलवेज राइट बॉट. आई बॉट सम चीज yesterday. ओके, नाउ सी सेकंड यूसेज क्या है बच्चा सिंपल पास्ट टेंस का, एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिचुअल एक्शन. अगर हैबिचुअल एक्शन अभी चल रहा है, ये आपकी अभी भी हैबिट है, तो सिंपल पास्ट आता है. लेकिन अगर एक पुरानी हैबिट थी आपकी, हो सकता है अभी वो नहीं है, जो पुरानी हैबिट है यानी कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन जो है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो. आई यूजुअली वेंट टू चर्च ऑन संडेज, ये पास्ट में था कि मैं यूजुअली संडेज को चर्च जाया करती थी. तो यहाँ पे मैंने वापस से क्या लिखा, वेंट लिखा. मार्क यूज्ड टू ईट अ लॉट, इसका मतलब क्या है कि अब मार्क इतना नहीं खाता जितना वो पास्ट में खाया करता था, ये उसकी पास्ट की हैबिट थी, अब वो इतना नहीं खाता है. सिमिलरली मैं पास्ट में हर संडे चर्च जाया करती थी, अब नहीं जाती हूँ. तो अगर हमें पास्ट हैबिचुअल एक्शन, बेटा अगर हैबिचुअल वर्ड में डाउट है तो हैबिचुअल का मतलब होता है हैबिट, जो आपकी आदतें होती हैं, जो आपकी हैबिट्स होती हैं. लेकिन ये पास्ट हैबिट की बात हो रही है बेटा, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूज्ड टू. मैं किया कर, मार्क के किया करता था, मैं चर्च जाया करती थी, अब नहीं जाती हूँ. अब मार्क इतना शायद खाना नहीं खाते होंगे. So basically, okay, no offense to the marks, I'm so sorry. Okay, don't do that. Okay, so this is basically the habitual action, right? एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, ये तो बहुत सिंपल है. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना जो पास्ट में हुआ था. ही ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफी. अब ये कप ऑफ कॉफी वो लास्ट मंथ लेकर आया, या कल लेकर आया था, या 1 घंटे पहले लेकर आया था, मुझे नहीं पता. लेकिन ये एक्शन पास्ट में हुआ था कि वो पास्ट में एक कप ऑफ कॉफी लेकर आया था. बॉट नहीं लिखा है, ब्रॉट लिखा है. ओके, हिज फादर केम बैक. सो दिस एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, बट कोई टाइम डिफाइन नहीं है. पास्ट में कब आए, 2 दिन पहले आए, 3 दिन पहले आए, वो चीज डिफाइन नहीं है. तो अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ और कंप्लीट हो गया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ, तो भी आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हो. लेकिन अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, उसका कोई टाइम नहीं गिवन है, कोई पर्टिकुलर टाइम आपको नहीं पता है, yesterday, डे बिफोर yesterday, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यू डू नॉट नो, देन ऑल्सो यू मेक यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. तो ये है सिंपल से यूजेस ऑफ वेरी सिंपल पास्ट टेंस. आई होप ये क्लियर हुए होंगे. अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताते जाइए. दीज आर द सिंपलेस्ट ऑफ रूल्स एंड यूजेस ऑफ अ सिंपल टेंस दैट इज अ सिंपल पास्ट टेंस. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन. अब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की. सिंपल पास्ट में तो बात हो ही गई, सिंपल सा था, कुछ ज्यादा दिक्कत आई नहीं, बहुत इजी था. देखिए, अब थोड़ा सा लेवल अप जाएंगे. अब हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चा, कि पास्ट में एक एक्शन थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहा होगा. देखिए, पास्ट में वो चलता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट से आने से पहले ही खत्म हो गया, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. राइट, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है. पहले आएगा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. उसमें क्या होगा बेटा, उसमें आएगा पहले तुम्हारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ तुम जोड़ोगे वॉज या वर, एंड उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जुड़ेगा आईएनजी. यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म चलता है हमेशा. कंटिन्यूस देखते के साथ ही समझ जाओ आईएनजी फॉर्म लगाना है. राइट, आई वॉज राइटिंग. और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो वॉज होता है वो आता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा. ये रूल है. सिंगुलर सब्जेक्ट लिखोगे तो वॉज लिखोगे, और वर आएगा विद प्लूरल सब्जेक्ट. सो दे वॉज राइटिंग कभी नहीं आएगा, वी वॉज राइटिंग कभी नहीं आएगा, दे वर राइटिंग, वी वर राइटिंग, एंड शी वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग. राइट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन किस चीज का है, यू का. यू में हमेशा क्या आता है, वर. यू वर राइटिंग, यू वॉज राइटिंग कभी नहीं होता. ये एक्सेप्शन है ग्रामर का कि यू के साथ हमेशा वर आएगा. भले आपको पता है यू जो होता है सेकंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन होता है, उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है. सेकंड पर्सन सिंगुलर इज आल्सो यू, सेकंड पर्सन प्लूरल इज आल्सो यू. तो यहाँ पर यू में कभी वॉज मत लगाइएगा बेटा. अगर आप सिंगुलर पर्सन की भी बारे बात कर रहे हो तभी वो वर ही लगेगा. उसमें यू जो है बेटा एक एक्सेप्शन है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ वॉज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वर अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, और फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी. आई वॉज राइटिंग, वी वर राइटिंग, शी वॉज राइटिंग. ऑलराइट,
अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा ही आएगा, फिर आएगा वॉज और वर्ब के साथ नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यहाँ पे एफर्मेटिव था, पॉजिटिव था, तो नॉट नहीं आया, नेगेटिव में बस नॉट जुड़ गया। फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट राइटिंग, शी वॉज नॉट राइटिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग, यू वर नॉट राइटिंग। ओके, तो ये सब क्या है बच्चा, ये सब है आपके नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आप लोग का आने वाला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहां पे अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक क्या था, सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर आ रहा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पहले वॉज और वर आएगा। तो पहले आप लिखेंगे वॉज या वर डिपेंडिंग अपॉन कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक्सेप्ट फॉर यू। ओके, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वर यू राइटिंग, अब यहाँ पे मैंने वॉज यू राइटिंग नहीं बोला, मैंने क्या बोला, वर यू राइटिंग। ओके, वर दे राइटिंग, वर यू लिसनिंग, वर यू स्पीकिंग, ओके, और वॉज आई राइटिंग, वॉज आई टॉकिंग। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस कर लेना, बस यू का एक्सेप्शन रखना, और जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस आप यूज करेंगे सब में क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी उसमें हमेशा जुड़ता है। यही रूल है बेटा कंटिन्यूअस टेंस का। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ पे यूज होने वाले हैं, अब उसकी डिटेल समझते हैं। पढ़ो, express an action that was in progress at some time in the past but got interrupted। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, ऑन गोइंग था, तभी तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूएशन में था, लेकिन वो हो रहा था तो उस बीच में एक और एक्शन हो गया, कोई दूसरी चीज हो गई, तो ये वाला एक्शन इंटरप्ट हो गया, ये एक्शन रुक गया, तब हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इससे और क्लियर होगा, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन एक्सीडेंट हैपेंड। ऑनगोइंग प्रोसेस क्या था, सॉरी एक्शन क्या था, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, पास्ट में मार्केट जा रही थी, तभी क्या हुआ, वो जो एक्शन था वो इंटरप्ट हो गया, क्योंकि क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन एक्सीडेंट हैपेंड, या फिर स्टूडेंट्स वर टॉकिंग इन द क्लास व्हेन द टीचर अराइव्ड। आई नो यू डू नॉट लाइक दिस, बट यू कीप ऑन टॉकिंग, अचानक से क्या होता है, आपकी जो बातें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके, वो रुक जाती है क्योंकि टीचर आ जाता है। तो एक जो एक्शन था वो क्या, वो इंटरप्ट हो गया, लेकिन ये सब चीजें कहाँ हो रही है, पास्ट में हो रही है। पास्ट में बच्चे बात कर रहे थे और पास्ट में टीचर आई, ओके, और क्या हुआ, जो आपका ऑन गोइंग एक्शन था वो इंटरप्ट हो गया, तो उस केस में आप यूज करते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, सेकंड यूज, एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस इन प्रोग्रेस एट सेम टाइम इन द पास्ट। अगर आपको पास्ट में दो साइमल्टेनियस एक्शंस को बताना है, दोनों एक्शंस एक साथ चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो रिलेटेड हो, लेकिन अगर दोनों एक्शन साथ साथ चल रहे हैं तो आप क्या यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक फॉर एग्जांपल, आई वाज स्टडीइंग इन माय रूम व्हाइल माय ब्रदर वाज प्लेइंग, मे बी आउटसाइड, एनीवेयर, ओके, लेकिन एक्शंस क्या है, साथ साथ चल रहे हैं, इनमें कोई आपस में कोई बहुत रिलेशन है नहीं, मैं पढ़ रही थी अपने कमरे के अंदर जबकि मेरा भाई उसी टाइम पे बाहर खेल रहा था, but these are both simultaneously going on, consecutively back to back नहीं चल रहा था, साथ साथ चल रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेक वन अदर एग्जांपल, while my mother was cooking, children while the mother, not my, but while the mother was cooking, children were watching TV। तो जब मदर खाना बना रही थी उसी ड्यूरेशन में क्या हो रहा था, पैरेलली बच्चे जो थे वो टीवी देख रहे थे। तो ये दो साइमल्टेनियस एक्शंस हैं जो एक साथ चल रहे हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब आप डिफरेंस देखिए बेटा, माय मदर वाज कुकिंग, माय मदर इज, द मदर इज सिंगुलर तो मैंने वाज लिखा, चिल्ड्रन आपको पता है इज अ प्लूरल टर्म, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, वर, आई मेड यूज ऑफ वर ओवर हियर। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि आप यूज करते हो चिल्ड्रंस, इट्स वेरी इनकरेक्ट। चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल फॉर चाइल्ड। तो प्लीज कभी भी चिल्ड्रंस मत लिखिएगा, हमेशा चिल्ड्रन लिखिएगा, वही प्लूरल है अपने आप में, एस नहीं लगता उसमें, लेकिन हाँ जब आप उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाए तो वर इस्तेमाल कीजिएगा, अगर चाइल्ड होता तो वॉज आ जाता, राइट। अब इसका तीसरा और आखिरी यूसेज भी समझ लेते हैं। Now see this, when a new action happened in between the longer action, simple past and past continuous tense are used together। एक एक्शन चल रहा था, लॉन्गर एक्शन चल रहा था, उसके बीच में एक और एक्शन हो गया, ओके, तो आप क्या यूज करते हो, सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल करते हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करते हो। देखिए, द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग,
तो लॉन्गर एक्शन कौन सा था, जो हमने बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, कि मैं पढ़ रही थी, मैं रीड कर रही थी, तभी लाइट चली गई। ओके, उसके बीच में एक एक्शन हो गया। ओके एक नया एक्शन हो गया, जिससे कि हो सकता है जो कंटिन्यूएशन में एक्शन वो इंटरप्ट भी हो सकता है, बट वो ऑनगोइंग भी हो सकता है, राइट। सो द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग। जब मैंने उसको देखा तो वो खेल रहा था। इसका मतलब क्या है, जब वो खेल रहा था वो ऑनगोइंग था, वो लॉन्गर एक्शन था। मेरे देखने के बाद भी वो खेलता ही रहा, वो रुका नहीं। लेकिन उसमें बीच में एक एक्शन क्या हुआ कि मैंने उसे देखा। तो जरूरी नहीं है कि किसी नए एक्शन के होने की वजह से जो ऑनगोइंग एक्शन है वो इंटरप्ट हो। अगर इंटरप्ट भी होता है तब भी हम सिंपल प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और अगर दो एक्शंस मतलब एक एक्शन ऑनगोइंग है, उसके साथ में एक नया एक्शन हो जाए, भले ही ऑनगोइंग एक्शन से इंटरप्ट हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलता चला जाएगा। लेकिन उस भी केस में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, और हम साथ में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं फॉर अ न्यू एक्शन। न्यू एक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस। और जो लॉन्गर एक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को बार बार देखिएगा, प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा। और जब आप इन सेंटेंस को इस तरीके की सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सॉरी, अगर आप अपने एग्जामिनेशन में या अपने कहीं अभी कोई भी क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्लीज कॉन्शियसली अवेयर रहिए कि जो आप लिखना चाह रहे हो, आपकी मंशा क्या है लिखने की, और उनको इस रूल के अकॉर्डिंग यूज कीजिए। तो यू आर नेवर गोइंग टू लूज मार्क्स फॉर ग्रामेटिकल एरर्स। कभी जिंदगी में आप लूज नहीं करेंगे बेटा मार्क्स। ओके, सो वी डिस्कस the sentence structure of simple past tense and then its uses. Second, we discuss the sentence structure of past continuous tense and its uses. और अब हम आते हैं हमारे तीसरे टाइप पे, और वो है हमारा past perfect tense, जो क्या बताता है, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन फिनिश्ड। पास्ट में है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट की बात होगी। लेकिन उसमें जाने से पहले, डिटेल्स में जाने से पहले कि एग्जैक्टली यहाँ पर इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया उस पर बात हो रही है। ओके, लेकिन वो कंप्लीटेड एक्शन है, जो पास्ट में हुआ वो भी कंप्लीट, पास्ट में शुरू हुआ होगा, पास्ट में कंप्लीट हो गया, तो परफेक्ट एक्शन की बात हो रही है, राइट। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे उसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। शुरुआत करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस से, राइट। एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंसेस। सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड। यहाँ पे हैज या हैव लगाने की गलती मत करना, वो कहाँ यूज हो गए, प्रेजेंट में। देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, हैड, और साथ में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो मैंने क्या बोला, आई हैड रिटन, यू हैड रिटन, दे हैड रिटन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हैड ही आएगा, और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आएगा, राइट, रोट एंड रिटन। रिटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब दैट इज राइट। क्योंकि मैंने थर्ड फॉर्म आपको बोला तो रिटन आ गया, ऑलराइट। तो ये है तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसी में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में लगा दो नॉट, बस, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे हैड नॉट रिटन, वी हैड नॉट रिटन, शी हैड नॉट रिटन, ही हैड नॉट रिटन। तो यहां पर केवल नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट के साथ हमें लगा दिया हैड के साथ लगा दिया नॉट, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो चलता ही रहेगा। लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, हैड को जंप करा देते हैं सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। अब हैड पहले आएगा, हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड यू रिटन, हैड शी रिटन, हैड दे रिटन, हैड आई रिटन। तो ये होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट यूजेस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा पहली चीज, एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन दी पास्ट। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के एक पर्टिकुलर मोमेंट के पहले, जस्ट पहले कंप्लीट हुआ। एट 11 AM इन द पास्ट he had started the presentation। अभी हो सकता है 12 बज रहे हो या 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, सुबह 11 बजे जो पास में निकल गया टाइम, एट 11 AM he had started the presentation। उसने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी 11 बजे डॉट, ओके। देन he had finished all the tasks in day time। उसने दिन के टाइम पर ही सारा काम कंप्लीट कर लिया, मतलब जो दिन था, अब दिन नहीं है, जो दिन था,
अब तो शाम है, ओके। जो दिन था उसमें उसने अपना सारा काम फिनिश कर लिया, कंप्लीट, डॉट, कंप्लीटेड हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हैड स्टार्टेड, यानी कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिमिलरली हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। इसको पढ़िए, सेकंड यूसेज क्या है, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस आल्सो इन द पास्ट। दो एक्शंस हुए, एक एक्शन दूसरे एक्शन के होने से पहले कंप्लीट हो चुका था। तो जो पहला एक्शन है उसको आप किसमें आप क्या यूज करते हो, उसमें आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको और समझाते हैं क्लियरली, इसको पढ़िए। आई रीच्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे पहले मैंने बाद में लिखा है, लेकिन पहला एक्शन कौन सा था कि ट्रेन निकल गई, वो पहला एक्शन हुआ था पास्ट में, तो मैंने हैड लेफ्ट लिखा है, राइट। और उसके बाद का जो एक्शन है आई रीच्ड, ये भी पास्ट में ही हुआ, लेकिन मैंने सिंपल पास्ट यूज किया है, आई रीच्ड। ये भी पास्ट में हुआ, लेकिन उससे पहले जो एक्शन हुआ था वो पहले ही होके खत्म हो गया। सो उसको भले मैंने लिखा बाद में, लेकिन इट हैपेंड बिफोर द फर्स्ट एक्शन, राइट। इसी को ऐसे लिखे, when he arrived to the train station the train had left। तो सेम चीज है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, ट्रेन पहले निकल गई, वो एक्शन पास्ट में होके खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन क्या हुआ कि मैं वहां पहुंची, राइट। इसको पढ़ो, as soon as she had completed her homework she ran to play outside। तो पहला एक्शन उसने कंप्लीट किया, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, जैसे ही होमवर्क कंप्लीट किया वो खेलने के लिए बाहर निकल गई, ओके। तो वो दूसरा एक्शन जो हुआ कि वो खेलने के लिए बाहर गई, वो भी पास में हुआ, वो अभी नहीं चल रहा है, पास में होके वो भी खत्म हो गया है। लेकिन जो पहला एक्शन था उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा एक्शन है उसको हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट, राइट। तो यहाँ पे हैड कंप्लीटेड आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, शी रैन, ओके। नेक्स्ट, एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ द पास्ट। ये यूनिक चीज है अबाउट द पास्ट प्रेजेंट टेंस, सॉरी नॉट पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये यूनिक बात है दैट इट एक्सप्रेसेस एन अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ द पास्ट। पास्ट में ऐसी डिजायर्स जो आपकी पास्ट में आप सोचते हो कि काश मैंने कर लिया होता, वो अनफुलफिल्ड डिजायर, फुलफिल्ड डिजायर्स नहीं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स की बात हो रही है। आई विश आई हैड पेड द बिल्स ऑन टाइम। काश मैंने जो टाइम से बिल पे कर दिए होते, ये मेरी पास्ट की अनफुलफिल्ड डिजायर है। दे विश दे हैड वन द चैंपियनशिप। काश वो चैंपियनशिप जीत चुके होते। दिस इज अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ द पास्ट। हैड पेड, हैड वन, तो यहां पर क्या हुआ, हैड के साथ आया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ये है हमारे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल यूसेजेस फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो प्लीज बताते जाना चैट बॉक्स में, वट एवर डाउट यू हैव, आई एम गोइंग टू कम अक्रॉस एंड सी योर डाउट्स, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ओके। बिकॉज ये वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रही हूँ कि टेंसेस को केवल एक ग्रामर के टॉपिक की तरह मत देखा करिए बेटा, उसको आप कॉन्शियसली रिकग्नाइज किया कीजिए जब आप प्रॉपर आंसर्स फ्रेम कर रहे हैं, चाहे आप आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हो, लेटर राइटिंग लिख रहे हो, या फिर अपने लिटरेचर के आंसर्स फ्रेम कर रहे हो। बहुत ध्यान से सोचो, अगर तुम्हें ये सारी चीजें आती है तो अब तुम्हें इसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, और तुम्हें कॉन्शियसली रिकग्निशन होना चाहिए कि अच्छा हाँ, मैं तो किसी कंप्लीटेड टास्क की बात कर रही हूँ, तो मुझे वहां पे सिंपल पास्ट लिखना चाहिए या पास्ट परफेक्ट लिखना चाहिए। और अगर मैं ऐसे दो एक्शंस की बात कर रही हूँ कि एक एक्शन दूसरे से पहले कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं दोनों में सिंपल पास्ट लगा रही हूँ? नहीं, मुझे एक जो पहले एक्शन कंप्लीट हुआ है दूसरे से पास्ट में, तो मुझे उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना चाहिए, दोनों में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दीज आर वेरी बेसिक रूल्स एंड आई वांट यू पीपल टू कॉन्शियसली रिमेंबर देम। ऑलराइट, मूविंग ऑन, let's move on to our last type and that is past perfect continuous tense। तो यहाँ पे परफेक्ट भी हो रहा है और कंटिन्यूएशन में भी हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा टास्क जो कि पास्ट में शुरू हुआ, थोड़े टाइम चला और वो पास्ट में ही खत्म हो गया, ओके। दिस इज बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। चलो let's begin with the sentence structure first। affirmative sentence structure, जहां पे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड बीन, फिर आएगा वर्ब के साथ आईएनजी। मैंने क्या कहा था, कंटिन्यूअस देखते के साथ ही सोच लो कि आईएनजी फॉर्म ही लगने वाला है वर्ब का, लेकिन क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है तो हैड भी लगेगा, दोनों को अपने अपनी चीजें कंट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी ना। और बीच में क्या लग जाएगा यहाँ पे, बीन। ये कुछ नया है जो हमने यहाँ पे डाला है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या आया, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी। आई हैड बीन राइटिंग, they had been writing, she had been writing, you had been writing। तो यहाँ पे had been के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, had not been आएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, had been not लिखते हैं, नहीं बच्चा, had been के बाद not नहीं लिखना है, had been not, ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। क्या लिखोगे, had
नॉट बीन, ये लिखोगे, ठीक है, याद रखना अगली बार। हैड नॉट बीन और फिर फर्स्ट फॉर द वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। यू हैड नॉट बीन राइटिंग, शी हैड नॉट बीन राइटिंग, ही हैड नॉट बीन राइटिंग, आई हैड नॉट बीन राइटिंग। सो यहां पर क्या होगा, नॉट बीच में आएगा हैड और बीन के। ओके, नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहां पे क्या होगा, अब हम हैड को स्विच करा देंगे सब्जेक्ट के पहले। तो पहले आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन और फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी। कैसे बनेगा, हैड वी बीन राइटिंग, क्वेश्चन मार्क, हैड दे बीन राइटिंग, हैड आई बीन राइटिंग। सो देयर इज अ क्वेश्चन ओवर हियर। तो पहले हैड लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर बीन लेकर आना, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगाना। क्लियर? तो ये है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक sentence structure for past perfect continuous tense. Okay, now let us see its use. एक ही इसका यूज है, वाइटल यूज है। It express an action that began before a certain time in the past, continued up to that time, or stopped just before it. ये एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले शुरू हो गया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक या तो चलता रहा या उससे जस्ट पहले ही खत्म हो गया, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कहने का मतलब क्या है, ये एक्शन, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट? इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है, या तो एक्शन यहां से शुरू हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा और यहां आके कंप्लीट हो गया, इससे जस्ट पहले कंप्लीट हो गया, या फिर डॉट इसी पे आके कंप्लीट हुआ लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं गया। ये बात ध्यान रखिएगा, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। At that time, he had been working in the company for 2 months. उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पास्ट में हो सकता है 2 साल पहले हो, 3 साल पहले हो, उस टाइम पे उसको इस कंपनी में काम करते करते 2 महीने ही हुए थे। अब हो सकता है 10 साल हो गए, राइट? सो एट दैट टाइम ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 months. नेक्स्ट, until he reached 9th standard, Kelvin had been studying in village. जब तक केल्विन 9th स्टैंडर्ड में था वो स्कूल विलेज में ही पढ़ता रहा, उसके बाद हो सकता है वो सिटी में विलेज में आ गया हो, लेकिन 9th स्टैंडर्ड तक, जो कि पास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, 9th स्टैंडर्ड का पुराना पास्ट का टाइम है, अभी वो 9th स्टैंडर्ड में नहीं है, 9th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे कंटिन्यूएशन में एक एक्शन चल रहा था, यहाँ पे आके वो एक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब उसने विलेज स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया 9th क्लास में आते साथ ही, लेकिन हर चीज कहाँ हो रही है, पास्ट में हो रही है, राइट? नाउ सी दिस, एक और एग्जांपल देखो। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो जो लड़के थे वो 1 घंटे तक पास्ट में वो सॉकर खेल रहे थे, फिर क्या हुआ, फिर हो गया रेन स्टार्ट, तो उनको सॉकर रोकना पड़ा। सॉकर क्या होता है, फुटबॉल बेसिकली। सो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड दीज वर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स और सिंपलेस्ट ऑफ यूजेस ऑफ टेंसेस। आई रियली होप ये जो टेंसेस जो बहुत ज्यादा बच्चों को डराता है, लर्नर्स को डराता है, वो अब आपको बिल्कुल नहीं डराएगा। मैं वापस से कह रही हूँ बच्चा पार्टी, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ग्रामर एक बार पढ़ने तो लगती बहुत ईजी है, लेकिन जब पढ़ने के बाद उसको रिवाइज नहीं करते हैं, उसको प्रैक्टिस में लेके नहीं आते हैं कॉन्शियसली, तो वो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट लगती है, एंड दैट एक्चुअली टेक्स अवे आवर मार्क्स। और इंग्लिश का पेपर है बच्चा, लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज की गड़बड़ करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर ग्रामेटिकल एरर, and you should not do that. You should be consciously aware of that. You write that you make use of correct grammatical structure while writing your amazing answers. Okay, so all the best and do not make this mistake. But before we end the session, हमेशा हम क्या करते हैं, हमारा जो चैनल का थीम है learning with evaluation. So I am now going to evaluate your learning that you have learned from this particular session. ज़्यादा बड़ा quiz नहीं लूंगी, छोटा सा क्विज है। Okay, I know you people have to have no enjoyment and celebration with your friends and your family. तो छोटा सा क्विज कंडक्ट कराऊंगी। Okay, so learners, be ready and keep on answering in the live chat box. Do not forget to do that. All right. So here comes your first question. All the best. Okay. He did not blank this test. Attempted, attempts, or attempt. A, B और C. D ऑप्शन नहीं है, ठीक है? A, B और C ऑप्शन नहीं है। इनमें से कौन सा आंसर होगा गाइस? I need to see your answers in the chat box. Quickly answers कीजिएगा. 10 more seconds to go, guys. He did not blank this test. Attempted, attempts, or attempt. Okay. Brilliant, guys. Brilliant. So now the time is over and the correct answer for this question is attempt.
क्यों आएगा अटेम्प्ट? क्योंकि हमने क्या बोला, डिड नॉट। और अगर आपने बोला है अटेम्प्टेड, इसका मतलब क्या है, आपको रूल अभी भी याद नहीं है। मैंने क्या सिखाया था, डिड या डिड नॉट के साथ हमेशा क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, अटेम्प्ट आएगा। ही डिड नॉट अटेम्प्ट दिस टेस्ट। सो अटेम्प्ट इज द करेक्ट आंसर। अटेम्प्टेड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, अगली बार गांठ बांध लो, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। While we blank working overtime, our boss blank enjoying his vacation. Was and were or was, is or was, क्या होगा करेक्ट आंसर? सोच के आंसर कीजिए, सामने क्वेश्चन, सामने ऑप्शंस। 13 more seconds to go before the timer ends. Come on guys, let's see your answers. 3 more seconds to go. 2, 1, and the time is over. Okay, and the correct answer is, while we were working overtime, our boss was enjoying his action. तो ये क्या हो रहा है बेटा, साइमल्टेनियसली दो एक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में क्या यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। फर्क क्या है, वी जो है वो प्लूरल है इसलिए वर्ड लगा है, आर बॉस सिंगुलर है बेचारा बॉस, तो क्या होगा, बॉस होगा। ऑलराइट, सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेल डन गाइस, वेल डन, कुडोस टू माय किड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The servant blank his work when I blank him. Had finished, had called, finished, had called, had finished and called। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, कौन सा रूल लगना चाहिए, सोच के देखो, अभी पढ़ाया है। 10 more seconds to go. Good going guys, good going, keep on answering. 5 more seconds to go guys, I need to see your answers. Okay, have you registered your answers or not? Because now the time is over and the correct answer was, the servant had finished his work when I called him। अभी सिखाया था ना, जब मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाया था, कि दो एक्शन, पहला एक्शन होके फिनिश हुआ पास्ट में, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ पास्ट में ही। तो जो पहला एक्शन होता है उसमें क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा एक्शन पास्ट में ही शुरू होता है उसमें क्या यूज होता है, सिंपल पास्ट। इसलिए मैंने क्या लिखा, सर्वेंट ने पहले काम कंप्लीट कर लिया, तो पहला एक्शन वो था। सेकंड एक्शन क्या हुआ, कि मैंने उसे बुलाया जब उसने काम कंप्लीट कर लिया, इसलिए फर्स्ट एक्शन में क्या यूज हुआ, हैड फिनिश्ड यूज हुआ, और उसके बाद हैड कॉल्ड नहीं आएगा बेटा, केवल आएगा कॉल्ड। क्या आएगा, सिंपल पास्ट। Okay, so this is our third answer for the third question. Now comes your fourth question. They had blank a new home. Buy it or bought. ये तो अभी बताया था, ये तो आपको आना चाहिए। मैं देखूं यहाँ पे कौन गड़बड़ करता है। Let's see if you know what is the correct verb over here. Buy it or bought, because this is a very regular error that students do. Come on, quickly give me the answer. 5 more seconds to go guys. 3, 2 and 1। और ये हुआ धमाकेदार एंड। तो यहां पर आया बेटा करेक्ट आंसर, एंड दैट इज, दे हैड बॉट अ न्यू होम। अगर जिसने भी बाइट लिखा है, बच्चा बाइट तो कोई वर्ड ही नहीं होता, जैसे बच्चे टीच्ड लिखते हैं, दिस नो वर्ड, टॉट। ओके, ऐसे ही बेटा ब्रिंग्ड लिखते हैं, ब्रिंग नहीं होता, ब्रॉट होता है। ऐसे ही बाइट नहीं होता, बॉट होता है। Bought is to be used over here. They had bought a new home. Okay, past perfect tense लगा है। All right, moving on to our fifth question. My brother had been blank for a long time. Preparing, prepared, or prepare। कौन सा वाला वर्ब आएगा, और मुझे बताइए कि कौन सा है, किस टाइप, कौन सा सब टाइप है पास्ट टेंस का। Let's see if you recall or not. This is just to check your comprehension. Do watch this video again. Do like this particular video. Do not forget to like and share this particular video. अगर आपको ये अच्छा लगा हो बेटा, और प्लीज वीडियो को वापस देखिएगा ताकि अच्छे से रिवीजन आप कर पाए। ऑलराइट, ओके, बात करते करते ही टाइमर हो गया है खत्म। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज, वेरी गुड लर्नर्स, इट्स प्रिपेयरिंग। That is, my brother had been preparing for a long time, maybe for an examination, okay, competitive examination or a board examination, लेकिन क्या आएगा, preparing आएगा, क्योंकि had been लगा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये है हमारा past
वेरी गुड, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो पास्ट में बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, काफी टाइम तक वो करता रहा। ऑलराइट, सो ये है बेटा हैड बीन प्रिपेयरिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आई रियली होप आपको इस सेशन में जो भी टेंसेस हमने पढ़ाए हैं, जो यूसेस मैंने बताए हैं, वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड आई होप बेटा यू एंजॉय योर फेस्टिविटीज, योर फेस्टिवल्स टुगेदर विद योर फैमिली। खुश रहिए और बड़े अच्छे से अपनी 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 हॉलीडेज को एंजॉय कीजिए। एंड कीप ऑन लर्निंग बेटा, डू नॉट फॉरगेट टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स। और वो मौका आपको कौन देता है? ओनली अन अकेडमी। और उसके लिए आपको क्या करना है बेटा? अपने मोबाइल फोन्स के प्ले स्टोर में जाना है। अच्छा टाइम है बेटा, शुभ टाइम है, तो शुभ काम करो। अपने मोबाइल फोन्स के प्ले स्टोर में जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐसा टाइप कीजिए। जैसे ये आइकन देखिए, इस पर क्लिक करो और इस ऐप को कर लो डाउनलोड। शुभ शुभ काम कर लो बेटा फटाफट से। और फिर क्या करो? स्टेप 3 है अपना, मैनेज टू आवर गोल। हमारा गोल क्या है? सीबीएसई क्लास 9 और सीबीएसई क्लास 10। जो आपका गोल है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन यू गो फॉर स्टेप 4 एंड स्टेप 5। और वो क्या है? टू गो फॉर दी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, जहां पे बेटा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए अमेजिंग कोर्सेज लेकर आए हैं, इन विच आर डिजाइंड इन लाइन विद योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। You will here get live interactive classes. You will here get better a chance to achieve 100% सक्सेस। आपको नोट्स मिलेंगे, अलग से डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, लिमिटेड एनरोलमेंट्स होते हैं बेटा, तो टीचर्स के साथ, एजुकेटर के साथ आप एक बहुत बढ़िया डिस्कशंस कर सकते हो, वो भी लाइव। और आपको मिलता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मतलब आप सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स के सारे लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के, जो मैं हमेशा कहती हूँ। और ये है बच्चा इस सब्सक्रिप्शन प्लान का डिटेल। और ये मेरे 9th क्लास के और 10th क्लास के लर्नर के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस के बेटा दोनों सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, केवल इंग्लिश नहीं बेटा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। और जो 9th क्लास के लर्नर्स है उनके तो और भी बढ़िया है, ओके, क्योंकि उनके तो चांदी ही चांदी है। इसमें एनरोल कराइए और 9th के साथ साथ 10th की पढ़ाई कर लीजिए, राइट। क्योंकि बेटा इसलिए मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगी कि आप इसको 12 मंथ्स यानी कि 1 साल के लिए एनरोल कराओ, एंड यू कैन स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ दीज क्लासेस। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स बेटा जो कॉस्ट है इट्स वेरी नॉमिनल, जस्ट फॉर 11,250, केवल 11,250 का सिंपल सॉरी नॉमिनल सा कॉस्ट बेटा। बहुत कम कॉस्ट पे इतनी बढ़िया पढ़ाई तुमको करने को मिलेगी और सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे 9th और 10th के। क्यों इतना सोच रहे हो? अभी एनरोलमेंट करा लो फटाफट से। एंड बच्चा अगर आपके पेरेंट्स चाहें तो इसी को और इजी कर दिया है अकेडमी ने, वो आपको मंथली बेस पे कहते हैं कि आप पे कर सकते हो एट जैसा नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 938 पर मंथ। बच्चा आपके घर के ब्रॉडबैंड का भी कनेक्शन का जो कॉस्ट होता है वो इससे ज्यादा होता है, ठीक है। ये तो फिर भी बहुत कम है, जस्ट 938 पर मंथ पे 2 साल बेटा, साल भर तक दोनों क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। और क्या चाह रहे हो? ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स 10% का डिस्काउंट तो तुमको मिल ही जाएगा और तुम हो जाओगे बहुत ही ज्यादा खुश। क्योंकि वो कैसे मिलेगा? जब तुम मेरा जो ये कोड है दैट इज श्रेष्ठा, SHRESHTH है, वो अप्लाई करोगे, टीचर को भी खुश करोगे और आप भी खुश हो जाओगे। तो फटाफट खुश कर दो टीचर को दिवाली पे। ऑलराइट, अब मेरा कोड यूज करो बेटा, माय रेफरल कोड इज श्रेष्ठा, SHRESHTH। आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में सबको बताइए to enroll to the plus courses of an academy, and while doing that use my Shrestha ma'am's code, that is Shrestha। Shrestha ma'am का कोड ही है श्रेष्ठा, ओके, तो उसको अप्लाई करना मत भूलिएगा, राइट। एंड दीज आर द डिफरेंट चैनल्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट्स और नेट बैंकिंग, ये सारे मेथड्स आपके पेमेंट के लिए बहुत इजीली और फीजिबली अवेलेबल है। और अगर आप एक स्टेप और जाना चाहते हैं, एक लेवल अप लेना चाहते हो बेटा, तो आप कर सकते हो हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एनरोल। और मैं एज ए एजुकेटर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक पर्सनल मेंटोर तो मिलेगा ही, साथ के साथ प्लस के जो भी तुमको बेनिफिट्स बताती रहती हूँ हर सेशन में, वो भी मिलने वाले हैं। और जो मेंटोर है बेटा वो ऐसे वैसे नहीं, वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स है वो शेयर करने का मौका मिलेगा विद आवर एजुकेटर्स। एंड बच्चा आपको एक्सक्लूसिव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे आपके मेंटोर के साथ। जो भी आपके मेंटल ब्लॉक्स है, जो भी आपकी कंसर्न्स है रिगार्डिंग योर कंटेंट, वो सब दूर होंगे बेटा ओनली थ्रू दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। तो मैं एज योर आप कह सकते हैं बेटा वेल विशर, आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बिकॉज दिस एक्चुअली गारंटीज योर सक्सेस, राइट। एंड बच्चा यहाँ पर भी अलग अलग ड्यूरेशन के प्लान्स अवेलेबल है, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ्स, जो भी आपको ठीक लगे आप उस ड्यूरेशन का प्लान एनरोल करा सकते हैं। एंड टू मेक थिंग्स इजियर, पेमेंट मोड बेटा थोड़ा सा हल्का रहे, ज्यादा बोझा नहीं आए, तो इसलिए आप इसको मंथली बेस पे पे करो, दैट इज ऑफ कोर्स नो रेकमेंडेड। अगर आप 18 मंथ्स के लिए बेटा एनरोल कराना चाह रहे हैं तो उसका मंथली कॉस्ट पड़ेगा जस्ट 1944 पर मंथ। अगर इसी प्लान को आप 24 मंथ के लिए एक्सक्यूज मी सॉरी बेटा,
24 मंथ के लिए एनरोल कराओगे तो कॉस्ट होगा 2000 रुपीज पर मंथ। और अगर आप इसी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को 3 साल के लिए लोगे तो कॉस्ट और कम हो जाएगा, इट कम डाउन टू 1833 per month only. All right, and of course, while doing this particular subscription, beta, please do not forget to use my code, that is Shrestha, to get an instant 10% off. टीचर को भी मोटिवेशन मिलेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा। ओके, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं बेटा, अगर वो उनको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो उनको भी प्लीज रेकमेंड कीजिएगा टू यूज माय रेफरल कोड, दैट इज श्रेष्ठा, while subscribing to the plus course, plus courses और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स, जो जो ज्यादा मेरी तरफ से आपको रेकमेंडेड है। एंड बेटा यहाँ पर भी सेम चैनल्स ऑफ मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल है जो कि प्लस के लिए मैंने आपको बताए थे। सो प्लीज गाइज, देखो एग्जामिनेशन तो सर पे आ ही गया है, लेकिन यहाँ पर अभी एक क्लास का मत सोचिए बेटा, आने वाले क्लासेस के बारे में भी सोचिए, आपके आने वाले आपके जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में भी सोचिए। एक सब्सक्रिप्शन प्लान में अगर आप 2 साल या 3 साल के लिए एनरोल कराते हो तो वो सारी की सारी पढ़ाई बेटा आप इसी में कर सकते हैं, चाहे बाहर सर्दी हो, गर्मी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन अगर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हमारे गाइड बन रहे हैं, हमारे मेंटोर बन रहे हैं, तो वहां पे तो सक्सेस मिलनी ही है। प्लस बेटा वहां पे आपको स्टडी प्लानर्स दिए जाएंगे, हम आप पे ध्यान रखेंगे बेटा कि आप प्रॉपरली अपनी पढ़ाइयों को, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और आपको टेस्ट दिए जाएंगे, क्विजेस होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन होगी, नोट्स मिलेंगे, यू गेट एवरीथिंग इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। So this is a very, very, very good opportunity. Do not let go of this opportunity. But it's hardly for 2000 rupees per month for 24 months and 1833 per month for 36 months. Okay, तो ये कोई बहुत बुरा डील नहीं है, it's a very good deal। और 10% का डिस्काउंट तो और मिल ही रहा है ना यूजिंग माई कोड, दैट इज श्रेष्ठा। तो प्लीज फटाफट से एनरोल करा लो। एंड एट द एंड अ वेरी जेंटल रिमाइंडर जो मैं आपको हमेशा देती हूँ, टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बेटा जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया वो आप फर्दर शेयर कर पाए। और नॉलेज तो मल्टीप्लाई होती है ना, बढ़ती चली जाती है। और बेटा फेस्टिविटीज का टाइम है, शेयर करते जाइए, फेस्टिविटीज की खुशी और बढ़ती चली जाएगी, राइट। एंड एट द वेरी एंड I give you a very gentle reminder to kindly use my referral code, that is Shrestha. Please इस कोड को यूज करो बच्चा पार्टी। So my very genuine request to all of you, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, स्कूलमेट्स को, किसी को भी, आपके रिलेटिव्स में, आपके कजन्स वगैरह में किसी को भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, या फिर उनको अनअकैडमी का कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, तो उसमें भी वो मेरा कोड जो है वो यूज कर सकते हैं, चाहे वो 6th क्लास के बच्चे हो या 12th क्लास के बच्चे हो, डजंट मैटर, यू कैन ऑल यूज माय आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इनफैक्ट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। And you will get an instant 10% discount and teacher will be very, very happy. मैं हो जाऊंगी बहुत ज्यादा खुश। Okay, वैसे मैं खुश रहती हूँ, but I'll be more happy. Okay, so guys, please stay home. Sorry, stay safe और खूब सारा enjoy कीजिए। Bye bye and please do take care. I'm going to see you tomorrow again. Same channel, same time. Your own channel, just 9th and 10th. Keep on watching these particular videos. Keep on liking us and keep on sharing our videos. Please take care and a very happy Diwali to all of you. Bye bye.